Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 21 June. Date is 21 June 2021. I am teaching you chapter number 2 and name of the chapter is Bones and Muscles. Okay, name of the chapter is Bones and Muscles. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you appendicular skeleton. Now the total number of bones in the human body, that is 206. Total number, and no and dot is short form of a number. Total number of bones equal to 206 bones. And let's do little recapitulation how the total number of bones are 206, because if you want to see the complete explanation, so in the previous videos I have given a whole complete explanation. Today just I tell you total number of bones and how when you add the total and you get 206 bones. And if you want the detail in how axial skeleton have 80 bones, you can watch the previous video. If you want to see how 120 bones are present in the appendicular skeleton, then you watch the previous video. And from where the 6 bones that are used in the girdles, that is pectoral girdle and pelvic girdle, that is used in your girdle, that is the pectoral and pelvic girdle. Through this, the upper limbs and lower limbs are joined to the axial skeleton. Is it clear? So detailed video you want to see, then you can watch the previous video. Today I just, for example, in axial skeleton equal to 80 bones. How it is 80 I have already explained you. If you want to see that, please watch in the previous video. Axial 80, appendicular skeleton equal to 120 bones. And then 6 bones used to join appendicular skeleton to the axial skeleton. Is it clear? So in axial 80 bones, appendicular skeleton 120 bones. If you add it, it become 200. And next 6 bones, these 6 bones are used to join appendicular skeleton to the axial skeleton. And the name of these two girdles are pectoral girdle and pelvic girdle. Is it clear? Now all total number of bones in the body are 206.
Now student, skeleton system, human skeletal system, I explained you in detail. I explained you the human skeletal system of the human body. Now in your book individually it is given about skull, spine and rib cage. Now that I will explain you. Okay, the skull. Okay, now when we are talking about the skull, so skull is the skeleton. Skull bones protect the very delicate organ of the body, that is our brain. ठीक है, that is our brain. It protects the very delicate organ of our body, and that is the brain. So I explain you something about the skull. Okay, eight bones, eight flat bones, eight flat bones in the skull, protect brain. ठीक है, here I write 22 bones. Here I have written 22 bones. It means total number of bones in the skull. Is it clear? Total number of bones in the skull are 22 bones. Out of these 22 bones, 8 flat bones in skull protect the brain. Is it clear? And 14 bones are give shape to your face. Is it clear? And 14 bones is used to make your face. Okay, so टोटल नंबर बोन इन स्कल की बात की है बेटा मैंने. ठीक है, स्कल में तुम लोग कंफ्यूज मत होना. एक्सियल में मैंने ईयर भी लिया था, तो ईयर, ठीक है, ईयर इज आल्सो ऑर्गन. ठीक है, ईयर एक ऑर्गन है. ठीक है, सो वहां मैंने अब सिर्फ स्कल की जब बात कर रहे हैं तो 22 बोन्स के स्कल की हैं. सो 8 फ्लैट बोन्स इन स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन एंड 14 बोन्स इज यूज टू मेक योर फेस. नाउ what the other thing which you observed in your skull, that is hole. This is the another thing which you observed in your hole. So hole for eyes, ears, nose and mouth. Is it clear? So what another thing that you observe in the skull? So another important thing which you observe in the skull, that is the holes. Now is it clear? Another thing which you observe in your skull is that is the holes. Holes for eyes, ear, nose and mouth. Okay, now next thing is here upper jaw and lower jaw, that is you. And when I will explain you joint, a new topic which I will explain you in this chapter, then you will understand what difference between a movable joint and immovable joint. So now the next thing which is present. Okay, now the next thing which is present,
Okay, the next thing which you observe in the skull, that is the jaw, upper and lower. So jaw, one is upper and one jaw is lower. So what is the difference? Difference is that upper jaw is fixed. जो आपका अपर जा बेटा ये इमूवेबल जॉइंट है. ये अपर जा जो है हमारी, इसमें एकदम मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है. जो स्कल, जो 8 फ्लैट बोन्स हुई हैं, इसमें भी आप मान लो बहुत माइनर जा, इसमें भी मूवमेंट नहीं होती है. इज इट क्लियर? और जो जा है, जो आपके स्कल में नेक्स्ट पार्ट आपने ऑब्जर्व किया, दैट इज द जा, अपर जा एंड लोअर. सो अपर जा इज फिक्स्ड. ठीक है. इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है. आप जब देख रहे होगे ना वीडियो, तो आप चेक कर लेना, आपके अपर उसमें जा में कोई मूवमेंट नहीं होती है. जब भी आप बोलते हो तो आपकी ये जो लोअर जा, आप खाना भी खाते हो, जस्ट अगर आपने फील नहीं किया होगा तो व्हेन यू ईट फूड, आप देखना आपका जो लोअर जा है, बस इसमें मूवमेंट है. ठीक है. जब मुंह चलाते हैं, सो विद द लोअर जा में अपर जा क्या है आपका, फिक्स्ड है. ठीक है. लोअर जा इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. अपर जा आपका फिक्स है. जो आपका अपर जा है वो क्या है आपका, फिक्स है. एंड लोअर जा जो है आपके, वो फिक्स नहीं है. ठीक है. वो मूव कर सकते हैं. एंड इट हेल्प्स टू स्पीक एंड ईट. ठीक है. आप खाना खाते हो तो ऐसे ऐसे करके मुंह चलाते रहते हो ना, तो आपके अपर जा जो है उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो फिक्स्ड है. लोअर जा जो है आपकी, उसमें मूवमेंट है. एंड इट हेल्प्स टू स्पीक एंड ईट द फूड. इज इट क्लियर? और जब आप लोग आईज, ठीक है, आईज, ईयर, नोज एंड माउथ, ये सब हो गया ना. अब देखो, जब आप अपने नोज को टच करते हो, ठीक है, नोज को टच कर देखो, इसमें बहुत फ्लैक्सिबिलिटी है. ठीक है. नोज में क्या, बहुत फ्लैक्सिबिलिटी है. तो ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है. ठीक है. सो कार्टिलेज को भी समझ लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है बोन्स में, कार्टिलेज का. ठीक है. सो इसकी रिकैप्चुलेशन कर देते हैं, बिकॉज आई विल रब द बोर्ड व्हेन वी स्टडी अबाउट द स्कल. स्कल कंटेन 22 बोन्स. ठीक है. 8 फ्लैट बोन्स इन स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन. इसके अंदर ब्रेन है आपकी, जो डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इज इट क्लियर? 14 बोन्स इज यूज टू मेक देयर फेस. जो फेस है हमारी, दैट इज ड्यू टू 14 बोन्स. दैट इज द रीजन स्कल है 22 बोन्स हो गई. ठीक है. अब कंफ्यूज मत होना, ये एक्सियल स्केलेटन में रुपेश सर ने बोला था ईयर में, तो ईयर अलग पार्ट है, ये स्कल से अटैच है. ये जो है ये कार्टिलेज है. देख लो, ये कार्टिलेज है. ठीक है. ये क्या है, कार्टिलेज है, अलग है ये. ठीक है. उसमें मैंने क्या बताया, 26 बोन्स वहाँ, और 1 ईयर में 3 बोन्स होती हैं. ठीक है. 1 ईयर में 3 बोन्स. तो वी हैव 2 ईयर्स, तो 2 3 ज़ा 6, और एक बोन किससे क्या ज्वाइन है, तुम्हारी टंग ज्वाइन है, तो 7. तो 22 + 7 29 बताया था वहाँ. लेकिन यहाँ सिर्फ स्कल की बात कर रहे हैं. ठीक है. ईयर अलग पार्ट है. ठीक है. तो नाउ स्कल जो है आपका, स्कल में 28 फ्लैट बोन यूज प्रोटेक्ट ब्रेन, 14 बोन इज यूज टू मेक योर फेस. एंड अनदर थिंग विच यू ऑब्जर्व इन द स्कल, दैट इज द होल्स. नाउ दीज होल्स आर फॉर व्हाट पर्पस? दीज होल्स फॉर योर आईज, ईयर, नोज एंड माउथ. ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग विच यू ऑब्जर्व इन द स्कल, दैट इज द जा, अपर जा, लोअर जा. सो अपर जा इज फिक्स्ड, वो उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, इमूवेबल जॉइंट है. जॉइंट अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तब आपको क्लियर होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक जब जॉइंट पढ़ाएंगे, तो वहाँ क्वेश्चन जरूर वहाँ से बेटा अराइज होता है, वेयर वी हैविंग द इमूवेबल जॉइंट बॉडी में कहाँ है. तो इमूवेबल जॉइंट बॉडी में ये जो आपकी अपर जा है, ये इमूवेबल जॉइंट है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती है. स्कल में भी कोई मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है. तो यहाँ आपके इमूवेबल जॉइंट प्रेजेंट है. ठीक है. और लोअर जा है, इसकी मूवमेंट होती है. दैट इज द रीजन वी आर एबल टू स्पीक एंड वी आर एबल टू ईट. ठीक है. वी आर एबल टू स्पीक एंड एबल टू ईट, दैट इज द रीजन. तो ये हो गया. अब कार्टिलेज समझ लो, कार्टिलेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
ये कार्टिलेज 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 is made up of cartilage is made up of strong tissues which are very flexible. ठीक है, कार्टिलेज इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज एंड विच आर वेरी फ्लेक्सिबल. ये जो आपके नोज है, ईयर है, सो ये कार्टिलेज है. ठीक है, इसीलिए इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड कार्टिलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देखो हमारी पूरी बॉडी जो है बोन से बनी है. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया मूवमेंट इन द बॉडी टेक प्लेस बिकॉज मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय द टेंडन्स. ठीक है, मसल्स क्या बोन से कनेक्टेड है. ठीक है, इन द सेम मैनर स्टूडेंट बोन भी बोन से कनेक्टेड है. बोन्स भी तो बोन से कनेक्टेड है. तो ये बोन्स जो होती हैं बेटा दे आर वेरी हार्ड. द बोन्स विच आर इनसाइड बोन इज व्हाट टाइप ऑफ ए ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन है. वी आर अनएबल टू सी देम. सो दीज बोन्स आर वेरी हार्ड. अगर दो हार्ड चीजों को अगर आप आपस में रब करते हो तो क्या होगा? अगर दो हार्ड चीजें रब कर रहे हैं तो वो घिसने लगेंगी. ठीक है, जैसे चौक के पीस ले लो, दो चौक के पीस है, उनको आपस में आप रब कर रहे हो. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, डस्ट वाइट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, नीचे गिरने लगते हैं. वो प्लेन हो जाता है रब करने से, हो जाता है ना. इज इट क्लियर? सो इन द सेम मैनर द बोन्स आर वेरी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. सो अगर ये बोन्स आपस में रब करती रहेंगी तो ये क्या होती जाएंगी? वहाँ से घिसती चली जाएंगी. ठीक है, वहाँ से वो जैसे आप लोग रबड़ से भी कोई चीज़ को रब करते हो, पेंसिल से लिखने के बाद या पेन का लिखा तो रब करते हो तो रबड़ भी स्मॉल स्मॉल कम होता जाता है ना. ऐसा तो नहीं है वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, क्योंकि वो उस रब करने से स्मॉल स्मॉल पीसेस उसके भी बाहर होते जाते हैं. ऐसा ही होता है ना, उसका साइज स्मॉल होता रहता है. इन द सेम मैनर स्टूडेंट इफ दीज बोन्स आर वेरी हार्ड, तो ये बोन्स आपस में अगर रब करती रहेंगी तो ये क्या हो जाएगा? घिस जाएंगी बोन्स. सो दैट इज द रीजन इन बोन्स पे देयर इज वेरी थिन कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज. जो आपकी कार्टिलेज है ना, ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच आर वेरी फ्लेक्सिबल. सो बोन्स पे इसकी कवरिंग रहती है कार्टिलेज की, जिससे कि बोन्स आपस में रब ना करें, क्योंकि रब करेंगी तो घिस घिस के छोटी हो जाएंगी. वो आ रही है बात समझ में? अगर वो रब करने लगेंगी तो घिस जाएंगी, आपस में छोटी हो जाएंगी, उनके साइज छोटे हो जाएंगे. देन यू विल फील लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बहुत से लोग जिनको ज्वाइंट पेन्स ये सब होती हैं, आपने सुना होगा जॉइंट्स में बहुत पेन होती है, दे आर अनएबल टू मूव. सो तो उसमें मेन रोल यही होता है. अगर बाई चांस उनके कार्टिलेज, ठीक है, डैमेज होने लगते हैं. ठीक है, जो कार्टिलेज क्या थी? आपकी बोन्स को उसने कवर कर रखा है. इसलिए जब बोन्स आपस के, उसकी आउटर कवरिंग किसकी है? कार्टिलेज की. सो डैट द बोन्स कैन नॉट रब. इफ द कार्टिलेज डैमेज तो ये बोन्स आपस में रब होने लगती हैं. दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द joint pains. Is it clear? So these cartilage play a very important role. तो स्कल मैंने पूरा बता दिया आपको, कार्टिलेज का भी बता दिया. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या दिया है? स्पाइन. अच्छा, स्पाइन के बारे में दिया है. ओके, द स्पाइन, जो कि मैंने तुम लोग को क्या बोल के पढ़ाया था स्केलेटन सिस्टम में? वर्टिबल कॉलम. सो जो आपकी बैकबोन है, ठीक है, जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे बैकबोन कहते हैं. बैकबोन इज नोन एज ए वर्टिबल कॉलम. ठीक है,
ये स्मॉल स्मॉल बोन्स को ज्वाइन होके बना है। इज इट क्लियर? सो देखो, मैंने क्या कहा था, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड number of bones are 300, but when slowly when it become adults, the person or adult is left with only 206 bones. तो इतनी बोन्स कहाँ गई? क्या हमने अंदर से निकाल निकाल के रास्ते में चलते हुए फेंक दी? नो, मैनी बोन्स, कुछ बोन्स क्या हो गई, आपस में फ्यूज हो गई और सिंगल बोन बन गई। बहुत सी बोन्स ऐसे 2-3 बोन्स आपस में फ्यूज करके सिंगल बोन्स बनती रही। इसलिए एडल्ट होते होते हमारे बॉडी में टोटल बोन्स कितनी रह जाती हैं? 206। इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर, इन द बिगिनिंग हमारी बॉडी में 33 बोन्स होती हैं आपके वर्टिबल कॉलम में, बट वही एडल्ट जब आप हो जाओगे तो ये 33 नंबर 33 बोन से चेंज करके कितना बच जाता है? 26 बोन्स बच जाती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो जो आपका बैकबोन है, वी कैन से इट एज ए वर्टिबल कॉलम। हम इसे क्या बोलेंगे? वर्टिबल कॉलम बोलेंगे। और दिस बैकबोन इज मेड ऑफ स्मॉल 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 बोन्स, और इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा। ईच बोन, अच्छा रुक जाओ, पहले बैकबोन लिखवा दो। बैकबोन, क्या आपकी बैकबोन है? बैकबोन इज आल्सो known as vertebral column। इज इट क्लियर? हमारी बैकबोन सिंगल बोन नहीं है। सिंगल बोन होती है तो हम बेंड भी नहीं कर पाते, ट्विस्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है, कोई मूवमेंट ही नहीं होती हमारी बॉडी की। देखो, ये आपके अपर पार्ट को सपोर्ट करती है आपकी बैकबोन। ये जो पूरी जो बैकबोन है आपकी, ये जो आपका अपर पार्ट है, अपर पोर्शन, जैसे आपका लोअर लिम्ब है, ये पूरे बॉडी के वेट को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, रन करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी स्लिम रहे, ठीक है। जब हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपने देखा होगा जो लोग बहुत फैट होते हैं, दे आर अनेबल टू मूव लाइक अ नॉर्मल पीपल। ऐसा नहीं है वो मूव नहीं कर पाते, बट दे फेस प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोअर लिम्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। और लोअर लिम्स पूरे बॉडी का वेट अपने ऊपर लेती हैं, और जो आपके पूरे बॉडी को जो सपोर्ट कर रहा है, ये जो पूरी बॉडी आपके अपर लिम्स लगे हैं, आपका स्कल है, ये जो बैकबोन है, इस ये पूरे को सपोर्ट कर रही है। ये बैकबोन सपोर्ट द अपर पार्ट, ठीक है, आपके पूरे अपर पार्ट को आपकी बैकबोन सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और पूरे आपके बॉडी का वेट किस पे जा रहा है? आपके लोअर लिम्स पे जा रहा है। इसलिए जो लोग बहुत फैट हो जाते हैं, दे फेस प्रॉब्लम इन वॉकिंग आल्सो। दौड़ तो वो सब जल्दी सकते ही नहीं है, ज़्यादा जल्दी दौड़ते नहीं है, इवन वॉकिंग में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आ जाओ स्पाइन पे। अब ये हो गया। अब ये कितने बोन से बना है? 26। सो हम क्या बोलेंगे? ईच बोन, देखो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बैकबोन इज आल्सो नोन एज डैश वर्टिब्रल कॉलम। ईच बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज वर्टिब्रा, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन अराइज होते हैं, दैट इज द रीजन मैं इन्हें मेन पॉइंट की तरह बोर्ड पे लिख देता हूँ, सो डैट अगर आप नोट नहीं कर सकते हो तो यू टेक या बुक और आप अंडरलाइन कर लो। इज इट क्लियर? ईच बोन of the backbone, each bone of the backbone, each bone of the backbone is known as vertebra, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग बोन्स हैं, ये सिंगल बोन्स नहीं है, 26 हैं। तो ईच बोन ऑफ ए बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रा। ये वन वर्ड क्वेश्चन एक बन गया। बैकबोन इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। देखो
ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। थर्ड क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, हाउ मेनी वर्टिब्रा बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज 26। पर अगर पूछ लिया इन द बिगिनिंग हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, तब 33 होंगी। ठीक है, एडल्ट होते होते बहुत सी फ्यूज हो जाती हैं, देन इट इज 26 बोन्स। ओके, अब नाउ अनदर थिंग, जितनी भी बोन्स हैं, ये स्मॉल 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 बोन्स है ना, सो अब इन ये आपस में रब ना हो, क्या ना हो, रब ना हो आपस में। तो इन सब के बीच में क्या है, जैसे बोन्स हैं, ठीक है, ये बोन्स हैं, मान लो ये भी बोन्स हैं, ठीक है, मान लो ये बोन है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिक्टली बोन्स होती तो ये आपस में रब करती रहती, तो घिसने लगती, रब करेंगी तो घिसेंगी। सो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में किसकी है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज हैं, जिसे हमने क्या बोला, कार्टिलेज। ये क्या है बेटा, कार्टिलेज है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, बोन्स को आपस में रब करने से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, कुशन का काम करते हैं जो बोन्स के बीच में, ठीक है। तो ये आपस में बोन्स को रब नहीं होने देते हैं। बहुत लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है, बेल्ट लगाते हैं, पीछे पीठ में बेल्ट लगा के चलते हैं, तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है बेल्ट लगाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम यहीं से अराइज होती है, जब ये जो बोन्स के बीच में जो थिन कवरिंग जो है किसकी, कार्टिलेज की, अगर ये कार्टिलेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर कार्टिलेज डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये बोन्स आपस में टच करने लगेंगे, रब करने लगेंगी, एंड दैट इज द रीजन द पर्सन वाज अनेबल टू वॉक। वो वॉक करने में भी उसे बहुत पेन होगी, बैठने में, इवन बैठने में, वॉक करने में, सिट करने में, ठीक है। सो ही विल फील लॉट ऑफ पेन। सो ये सारे स्मॉल स्मॉल बोन्स के बीच में क्या है, कार्टिलेज है, जो इन्हें रब नहीं करने दे रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये जितनी भी बोन्स हैं, जितने भी बोन्स हैं, इसमें होल है, ठीक है, सारे बोन्स में क्या इंपॉर्टेंट होल्स हैं, ठीक है। और इस होल्स में से पास होके क्या गया आपका, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये तुम लोग को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, व्हेन आई टीच यू अबाउट द नर्वस सिस्टम। ब्रेन का ही पार्ट है जो एक्सटेंड होके जा रहा है, और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, बैकबोन, बैकबोन, क्योंकि बॉडी के अदर पार्ट भी हैं, सारे सेंस ऑर्गन तो आपके हेड में आ गए टच में बॉडी के, लेकिन अब हैंड्स भी है, लेग्स भी है, और पार्ट भी हैं बॉडी के, इसलिए ये एक्सटेंड होके गया। ये नर्वस सिस्टम ही का पार्ट है, और ये किससे अटैच है, नेटवर्क ऑफ नर्व से, नेटवर्क ऑफ नर्व से अटैच है, इट इज अटैच विद द नेटवर्क ऑफ नर्व। सो एनीथिंग हैपन्स, तो उसकी सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी, एंड ब्रेन विल, और ब्रेन send signal to that organ what action should be taken, ठीक है। तो ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी आपकी बैक मूवमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ तक पूरा बता दिया आप लोग को, स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया। सो अब रिकैप्चुलेशन लेनी है तो एक रिकैप्चुलेशन ले लो। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ईच बोन ऑफ द बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रा, ओके, एंड देयर आर हाउ मेनी बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज 26, एंड between these bones cartilage is between these bones, so they don't rub with each other. To stop the rubbing of the bones, there is a cartilage, ठीक है, thin layer of cartilage in these bones. And another thing is that from this back, all these backbone, there is a hole, because from this hole spinal cord passes, and through the network it is connected to other organs of the body. If there is any response or any sensation in any part of the or any organ, then message from the nervous system is sent to the brain, and brain sends signal to that organ. Okay, so thank you student.